The fourth verb for do that is karna. Sakshi ji, what was the fourth verb? The fourth verb was do, that is karna. Shivang, what was the fifth verb? Sakshi, the fifth verb was speak, that is बोलना. रोशनी दीदी, what was the fifth verb? वैशाली दीदी, what was the fifth verb? Sorry. Uh, the fifth verb was speak, that is बोलना. Vaishali ji, what was the fifth verb? Vaishali ji, what was the fifth verb? The fifth verb was talk, that is बोलना. No, it is speak. Speak, that is बोलना. uh, हेमा जी, what was five verb from बोलना? The fifth verb was speak, that is bolna. Sakshi ji, what was the fifth verb? The fifth verb was speak, that is bolna. Shivang, what was the sixth verb? Sakshi didi, the sixth verb was have, that is खाना. रोशनी दीदी, what was the verb for खाना? Come again, Shiva. What was the verb for खाना? What was the verb for khana? No, Shivang You can't answer. you can give anything, any answer because you speak English. That's why we are talking in English. You can What give was wrong the answer, right answer. It is not none of that. It is none business. You Come please again, give Shivang, answer. come again. What was What the was the verb for khana? what was the verb for khana? Vaishali ji, what was the verb for khana? The sixth verb was खाना, that is eating. Yeah, eat. Obvious didi, it is not eat. It is have. Huh? Huh? Have. Come again, शिवांग, सुनाई नहीं आ रहा. फालतू तो. शिवांग, please come again. Shivang, you are not audible to her. Vaishali Didi, I am saying no. The verb for khana is not eat. That is have. 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 Huh? Actually, she was absent that day. हाँ. Shivang, शिवांग, that's why स्पेलिंग she is स्पेलिंग confused. बताना शिवांग. If you are absent for one day, you हाँ. will get lost, ladies. Guys, please mind this thing. Do not bunk this class.
Okay, you can ask this question to anybody else. Okay, Shivang, ask me this question. Sir, what was the verb for khana? Shivang, the verb for khana was have, had, had. Roshni, what was the verb for pina? Have. The verb for pina, that is have. Carry on, please. आगे पढ़ाइए. Shivank, what was the verb for pina? Roshni Didi, the verb for pina was have, had. Sakshi Didi, what was the verb for pina? The verb for pina, that is have, had, had. Vaishali Didi, what was the verb of pina? The verb was pina, that is have, had. Hema ji, what was the verb from pina? Hema ji, The what verb was for the verb for pina, that is pina. Sorry, Hema ji. Okay. The verb was for pina. Sorry. ओके मैं एक बार और वैशाली सुन जी, लेती हूँ फिर फ्री हो जाऊंगी वैशाली एकदम. जी, please ask this question to Sakshi. okay, Sakshi, what was verb from pina? The verb was the verb from the verb was pina, that is have, had. Thank you, Sakshi. Ask me. रोशनी दी, Ask me. sir, what Yes. was the verb of pina? बेटा तुम लोग का सीसी ऑन है या नहीं? इज योर सीसी ऑन? उसमें देखा करो, लिखा हुआ भी आ जाता है, राइट? रोशनी, व्हाट वाज द वर्ब फॉर लेना? व्हाट वाज द वर्ब फॉर लेना? The verb for lena, that is have. लेना के लिए कौन सी Had. क्रिया थी? Yes, sir. लेना के लिए कौन सी क्रिया थी? Sir, लेने के लिए. Sir, have. बेटा आई हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस. अच्छा. मैंने प्रक्रिया को पूर्ण किया, तुम्हें आदत नहीं है इसलिए तुम हड़बड़ा गई. शिवांग, व्हाट वाज द वर्ब फॉर लेना? Sir, the verb for lena was have. लेना के लिए कौन सी क्रिया थी? सर लेने के लिए have क्रिया थी. थैंक यू. अब हम आगे चलते हैं, इसको यहाँ रोकते हैं, ये रोज होगा. शिवांग, एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes sir, you are clearly audible. साक्षी, एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes, sir, you are clearly audible.
क्या मेरी आवाज आपको साफ साफ आ रही है? यस सर, आपकी आवाज मुझे साफ साफ आ रही है। एम आई लो और हाई? सर यू आर ऑडिबल इज मीडियम। थैंक यू। अब साक्षी यही सवाल आगे बढ़ाओ किसी को। रोशनी दी, एम आई ऑडिबल, एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes, Sakshi, you are clearly audible. वैशाली जी, am I clearly audible? Roshni ji, yes, you are clearly audible. सर Shivang, उसका हिंदी भी करना है क्या? बेटा अगर जरूरत हो तो कर सकते हो, है क्या? सर नहीं। अगर कोई बोले कि हिंदी, अगर कोई बोले कि कंप्लीट द प्रोसेस, तो उसका मतलब होता है प्रक्रिया पूरी करे, मतलब तब हिंदी कर देना। मान लो सामने वाले को नहीं आ रहा समझ में, है ना, तो वो बोलेगा कंप्लीट द प्रोसेस, तब हिंदी कर देना। Shivang, am I clearly audible? Sorry, Vaishali Didi, come again, please. Shivang, am I clearly audible? सॉरी वैशाली जी। बेटा सुनिए सभी लोग, जो लोग सॉरी बोल रहे हैं, वैशाली जी गलत नहीं बोल रहे हैं। ये जो उच्चारण कर रहे हैं, आमतौर पे मैंने साउथ इंडियंस यानी जो दक्षिण में रहते हैं, साउथ के लोग, मद्रास आदि में। वैशाली जी क्या आप साउथ से हैं? नहीं सर, महाराष्ट्रियन हूँ। हाँ, तो मराठी। ये, जी, कोई बात नहीं। तो जो ऑडिबल साउथ ऑडिबल। के लोग होते हैं, वो इस शब्द को आमतौर पर यम या यम या एम या इस तरह का उच्चारण करते हैं बेटा। और आप लोगों ने कभी किसी साउथ इंडियन को शायद नहीं सुना होगा, इसलिए आपके लिए ये अजीब और नया है। इसका सही उच्चारण है ए छोटा ए, माँ छोटा माँ, एम। एम। लेकिन उनकी जुबान से वो, क्योंकि लंबे समय से वो यम ही यम यम ऐसा ही बोलती आ रही है, तो वो गलत नहीं बोल रही है। ठीक है। शिवांग, am I clearly audible? Yes, Vaishali Didi, you are clearly audible. Ava ji, am I clearly audible? बेटा कई बार वो म्यूट रहती हैं और बोलती जाती हैं, अभी आदत नहीं है तो रिपीट कर दिया करो, तुम्हारे मुंह से इंग्लिश ज्यादा निकल आएगी। Ava ji, Yes. am I clearly audible? एक प्रॉब्लम और है, वो अपना कैमरा भी बंद रखती हैं, तो समझ में नहीं आता है कि वो वहां मौजूद है कि नहीं। जैसे वैशाली जी का कैमरा ऑन है, उनका माइक भी ऑन है, वो अपना माइक बंद करना अभी भूल गई, तो वो एक जो सरसराहट बीच में आ रही थी ना, वो उसके कारण आती है। अब देखिए, हेमा जी 1 सेकंड के लिए प्रकट हुई, फिर अंतर ध्यान हो गई, तो ये सर नेटवर्क की मुझे आज है प्रॉब्लम ना है। फीवर है। सर ओहो, मुझे आज है ना फीवर है, नॉट वेल। फिर भी मैं क्लास, मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, मैं क्लास अटेंड बिल्कुल कर आपने रही ये हूँ। बहुत सही किया, इससे मन जो है दूसरी तरफ जाता है, हाँ क्योंकि हम बिस्तर में अगर लेटे रहेंगे तो पूरे समय तबीयत खराब, तबीयत खराब, तबीयत खराब सोचते रहेंगे, हाँ सर। इससे मन दूसरी तरफ जाता है। और इस क्लास में जैसा आप कल देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कुछ लोग, कल वो एक नई बच्ची भी आई थी, सब एंजॉय कर रहे थे, तो इस क्लास में आपका मन थोड़ा सा अच्छा होता है, ये आपने बहुत अच्छा किया। और ये उदाहरण हम दूसरे बैच में भी देंगे
कि हेमा जी की को बुखार था, उसके बावजूद भी वो क्लास अटेंड कर रही थी, और ऐसा होना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो अब हेमा जी से किसको पूछना है? वैशाली जी को पूछना है कि? हाँ प्लीज, शिवांग। Hema ji, am I clearly audible? Yes, clear audible. Shivang, yes, clear audible. हेमा जी, आपने उत्तर पूरा नहीं दिया। Okay, sir. शिवांग, आप रोशनी दीदी से एक बार पूछो, हेमा दीदी फिर से सुनेंगी। Roshni Didi, am I clearly audible? Yes, you are clearly audible. शिवांग, हेमा जी से पूछिए आप। नहीं बेटा, अब आप पूछ लो, बारी आपकी आ गई है तो। सॉरी सर। हेमा जी, एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes, for you are clear audible. Who is rest? Sakshi ji, am I Sorry, clear हेमा जी, audible? हेमा जी सॉरी, Okay. एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes, you are clear audible. रोशनी, इस बात भी गलत है, तुम साक्षी से पूछ लो तो उनको एक बार और सुनाई देगा। और साक्षी, फिर तुम वैशाली जी से पूछना, वैशाली जी हेमा जी से पूछेंगी। ओके? साक्षी, एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes, you are clearly audible. Vaishali Di, am I clearly audible? Yes, Sakshi, you are clearly audible. दोस्तों एक सेकंड रुकिए। मुझे ऐसा लगा अभी देखने से, कैमरा ऑन रखने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ आप समझ गए हैं। हमें ऐसा लगा कि हेमा जी वो सब लिख रही हैं साइड में, तो उनका ध्यान जो है, ये जो अपन कंसंट्रेट करते हैं ना इस क्लास में। अच्छा, कौन बताएगा कि गुरु मंत्र क्या है इस क्लास का? if you want to be a good speaker of English, you must be a good listener. और हिंदी में कोई और बताए? सर मैं, जी अच्छा वक्ता ही अच्छा श्रोता होता है। हाँ, थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। इसको रोशनी अच्छे शब्दों में, सही पूर्ण शब्दों में बताए। अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा होना जरूरी है। थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। शिवांग, हिंदी बताएं। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही शब्दों में बोला। अब साक्षी, हिंदी एक बार आप भी बोले। अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अब आप वैशाली जी से अनुरोध करें, उनका नाम पुकारें तो वो बोलेंगी। बोलो वैशाली जी। साक्षी, बोलो वैशाली जी। वैशाली दीदी, यस, अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। हेमा जी, अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा है। हर वॉइस इज चॉपिंग। हर वॉइस इज चॉपिंग। Okay. Who is rest? नहीं है शिवांग, अभी। whose voice is chopping? Sir, Hema Didi's voice is chopping. Very nice.
किसकी आवाज कट कट के आ रही है? सर हेमा दीदी की आवाज कट कट के आ रही है। अब आप यही रोशनी सवाल। दीदी। हाँ, Whose voice is chopping? Come again, Shivang. Whose voice is chopping? Hema ji, voice is chopping. Sorry. हाँ बेटा रोशनी, तुमने जो इंग्लिश बोला ना, उसका अर्थ होगा हेमा जी आवाज कट कट के आ रही। कौन सा शब्द छूट गया हेमा जी? आपका माइक ऑन है, यू आर अनम्यूट, सॉरी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। देखो बेटा, तुमने बोला हम उसको पूरा लिख के बताते हैं बेटा, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना? तुमने जो बोला एक बार फिर से बोलो बेटा रोशनी। Hema ji, voice is chopping. फिर से बोल रहे एक बार। Hema ji, voice is chopping. एक बार और बोल दो। Hema ji, voice is chopping. अब जो हम करने जा रहे हैं वो सब कोई बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन अपना माइक बंद रखिएगा तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। चालू करेंगे तो आवाज खरखर आएगी। वैसे तो हम हमेशा बोलते हैं और आज फिर से बोल रहे हैं कि इस क्लास में अक्षर से अनुवाद नहीं करना चाहिए। अक्षर से अनुवाद, इसको ऐसा लिखते हैं। अक्षर से अनुवाद का इंग्लिश होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। लेकिन कभी कभी समझाने की दृष्टि से बेटा मुझे खुद भी अनुवाद करने की मदद लेनी पड़ती है। अब बताओ रोशनी, हेमा जी का क्या अर्थ होगा? हेमा जी, अब वॉइस का अर्थ बता दो बेटा तुम। Voice, आवाज. शॉपिंग का अर्थ बता दो, जो तुम लोग महिलाएं रोज करती हो सुबह से। Chopping. रुक रुक कर. और इसका अर्थ मालूम है बेटा? किसी और को मालूम है इसका अर्थ? है। है. अब हमने ये पूरा वाक्य लिख दिया बेटा जो तुमने बोला था। हम इसको थोड़ा और दूर करते हैं जैसे दिखाई दे। तो अर्थ निकल रहा है बेटा, जिसका आईफोन होगा उसको पूरा नहीं दिखेगा, मजबूरी है। हेमा जी आवाज कट कट कर आ रही है। कोई हिंदी शब्द की कमी दिख रही है बेटा रोशनी तुम्हें? देखो कहीं कोई हिंदी शब्द की कमी। हाँ, कहाँ लगाओगी बेटा? हेमा जी की आवाज कट कट कर आ रही है। तो हिंदी में तो हमने पट्ट से लगा दिया। क्या आपको वो कलर दिख रहा है जिस कलर से मैंने लिखा है? यस सर, रेड कलर से. हाँ, तो हिंदी में तो हमने लगा दिया, हाँ रेड कर है सर, रेड। लेकिन इंग्लिश में कहीं आपने वो लगाया है जिस, नो सर. याद है हमने शुरू में इस बैच में बताया था जब आप सब लोग अपने हस्बैंड का नाम गलत लेते थे, याद करो। चाहे हेमा जी उत्तर दें, चाहे वैशाली जी उत्तर दें, रोशनी दे, क्योंकि ये बिटिया तो बाद में आई है तो उससे हम नहीं पूछेंगे साक्षी से, लेकिन इस बहाने साक्षी को सर तो एस एपोस्ट्रोफी लगेगा। एस.
apostrophe s. Put your hands together for वैशाली जी. अब वैशाली जी आप बताइए ये apostrophe s कहाँ लगाएं? हेमा जी के नेम को. हेमा जी. apostrophe होते? हाँ, हेमा जी. अच्छा, कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि गूगल पूरा लिख लिख के दे देता है, लेकिन या तो हम अपना सीसी ऑन नहीं करते क्योंकि हमें आदत नहीं है, या फिर हम बोलते समय उसको देख नहीं पाते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना. अच्छा, किसी का माइक ऑन छूट गया है, वो सर्र सर्र चिट्ट की आवाज आ रही है ना, तो ये आदत थोड़ी धीरे धीरे आ जाएगी, कोई बात नहीं. बेटा याद आया रोशनी? यस सर. तो चलो एक बार इसका अभ्यास करा दे. आप बदल भी सकते हैं. हम शिवांग से फादर के बारे में पूछेंगे, आप हस्बैंड के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके सर. शिवांग, व्हाट इज योर फादर्स नेम? Sir, my father's name is Mr. Rakesh Dubey. देखिए गूगल कितनी खूबसूरती से टाइप करता है, सही सही. यू कैन सी दिस. देखो वैशाली जी देख रही हैं कि नहीं पता नहीं, हेमा जी देख रही हैं कि नहीं पता नहीं, साक्षी देख रही है कि नहीं पता नहीं, इन लोगों का सीसी ऑन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी स्क्रीन पे तो एकदम सही लिखा हुआ आया, विद्या कसम. फिर से Should पूछूं I? क्या? शुड आई आस्क अगेन? Yes, sir, you should ask again. क्या मैं फिर से पूछूं? हाँ सर, आप फिर से पूछ लीजिए. ये देखिए इस क्लास का ये तरीका है दोस्तों, जब भी हम शिवांग से प्रश्न करते हैं वो पूरा उत्तर देता है और आप लोग केवल उत्तर देते हैं. इसको बदलना पड़ेगा, हैबिट. इस बार हम बदल दे रहे हैं शिवांग से. शिवांग, व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम, एल्डर सिस्टर्स नेम? Sir, my elder sister's name is Neha Didi. Neha Dubey. आपकी तो बड़ी बहन का नाम क्या है, बड़ी बहन का नाम क्या है? सर, मेरी बड़ी बहन का नाम नेहा दुबे है. थैंक यू. रोशनी दीदी, what is your daughter's name? माय डॉटर्स नेम इज अर्श पटेल. डॉटर्स नहीं है, सन है, सन. Okay, son's name. रोशनी दीदी, आपके लड़के का नाम क्या है? मेरे लड़के का नाम अर्श पटेल है. बेटा पूरा सवाल फिर से कर लो ना, अभी हमने तुम्हारी तारीफ की. रोशनी डॉटर की दीदी, जगह सन बोल. हाँ. okay. रोशनी दीदी, what is your son's name? माय सन्स नेम इज अर्श पटेल. रोशनी दीदी, आपके लड़के का नाम क्या है? मेरे बेटे का लड़के नाम? का नाम अर्श पटेल है. बेटा एक बार हिंदी हम तुमसे दोहरा रिपीट करवा रहे हैं. शिवांग बोलना, रोशनी दीदी आपके बेटे का नाम क्या है? रोशनी दीदी, आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम अर्श पटेल है. वैशाली जी, व्हाट इज योर हस्बैंड्स नेम? My husband's name is Ravi Dorlikar. आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम रवि डोरलीकर है. साक्षी, what is your sister's name? My sister's name is सृष्टि तिवारी. साक्षी,
तुम्हारे बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम सृष्टि तिवारी है। हेमादी, व्हाट इज योर डॉटर्स नेम? My daughter's name is Tushita Motwani. दीदी, आपकी है? मेरी बेटी का नाम तुषिता मोटवानी है। Sorry, come again, please. Sakshi Didi in Hindi. दीदी, आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम तुषिता मोटवानी है। Who is rest? Shivang. What is your sister's name? I am done. Who is rest? Nobody is rest. Okay. Beta, you could answer Shivan because round started from you, but now I have come, so she can ask me. Hemaji, you can ask me. What is your sister's name? Shivang, what is your sister's name? My sister's name is Jaya Devi. शिवांग, आपकी बहन का क्या नाम है? दीदी मेरी बहन का नाम जया देवी है। Should I ask Dos- you, sir? No, beta, it is done. दोस्तों, क्या मैंने आपको कभी बताया कि अभी शिवांग तुम उत्तर मत देना, वैशाली जी, हेमा जी, साक्षी या रोशनी ही उत्तर देंगी। इस क्लास में मैं 2 चीजें रोज देता हूं। क्या आप में से कोई बता सकता है वो कौन कौन सी हैं? Sentence meanings. हेमा जी, अच्छा प्रयास। एक बात अच्छी है हेमा जी, आप म्यूट कर लें और सुने। म्यूट योरसेल्फ एंड लिसन। आपने जवाब दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जवाब गलत है, लेकिन इस क्लास में ये बोलने वाली क्लास है, तो आपको म्यूट करके हमेशा नहीं बैठना है। जब जरूरत है तब अनम्यूट कीजिए और बोलिए। चलिए, एक जवाब तो आ गया जो कि गलत है। अब सही जवाब की तलाश में मैं इंतजार कर रहा हूँ। सब लोग गलत जवाब दे देंगे तो भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन सब लोग जवाब देंगे तो मुझे खुशी होगी। सर इडियम। वाह, देखो एक चीज तो बाहर आ गई, इडियम। इडियम का है हिंदी। रोशनी, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, ये बाकी जो 3 लोग हैं, वैशाली जी, हेमा जी और साक्षी, इनसे पूछेंगे। सर इडियम मुहावरा। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। अब दूसरी चीज और बता दो। अब हेमा जी और साक्षी जी, दूसरी कौन सी चीज है? नहीं तो फिर मैं वैशाली जी या रोशनी जी की मदद लूंगा। मैंने व्हाट्सएप में भेजा भी था उसको, लिखा हुआ। चलो रोशनी, आपने हाथ उठाया है, आप ही बता दो। सर लोकोक्ति। नहीं बेटा, इडियम का दूसरा हिंदी नहीं पूछ रहा है। एक और जो चीज देते हैं, एक तो इडियम देते हैं और दूसरी चीज कौन सी? सर आपने मूवी का
बोला था? मूवी का नाम बताना सर, आपने वो कुछ बोला था, कुछ मूवी का हाँ, नाम। एक बात अच्छी है रोशनी कि तुम जवाब दे रही हो, ये अच्छा लग रहा है, गुड। इस क्लास में साक्षी और शिवांग और केवल तुमसे हम मतलब बोल रहे हैं। इंट्रो, सर इंट्रो भेजना पड़ता फोन में। नहीं बेटा, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रोशनी। बेटा साक्षी और शिवांग, तुम लोग जब अपने स्कूल की क्लास अटेंड करते होगे ऑनलाइन, तो उसमें सबको चुपचाप म्यूट बैठना होता है, कैमरा बंद रखना है होता है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि वो वाली क्लासेस समझाने वाली क्लासेस है, वो अपना समझाते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन ये क्लास म्यूट करके बैठने वाली क्लास है। आप अनम्यूट कीजिए और जवाब जरूर दीजिए। अब देखिए हेमा सर जी का कैमरा इंटरेक्टिव ऑन है, तो समझ में आ रहा है कि वो बोल रही हैं, तो हम उनको टू फट से ज्वाइन बोल सकते मीटिंग हैं सर, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, टू ज्वाइन मीटिंग। नहीं, अच्छा प्रयास, गलत जवाब। अब साक्षी सर बेटा एक, इंटरेक्टिव अरे वाह, इंटरेक्टिव सही सेंटेंस। जवाब, आपको मिलते 7.5 करोड़। ये देखिए, आप ऊपर देखिए, दोनों चीजें लिखी हुई दिख रही हैं। आप अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हैं अगर दिख रही हो तो। ऊपर वाला सबसे पहले शिवांग पढ़ के बताए। Today's interactive sentence. कंप्लीट द हिंदी also. प्रोसेस। आज का बोलचाल का वाक्य। वेरी नाइस, थैंक यू। कॉल समबडी, किसी का नाम लो। रोशनी दीदी, रोशनी दीदी। टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस, आज का वार्तालाप का वाक्य। साक्षी। टुडेस इंटरेक्टिव सेंटेंस, आज का वार्तालाप वाक्य। बेटा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा हिंदी जब तुमने बोला तो? कम अगेन साक्षी। सर हिंदी। प्लीज रिपीट बोथ द सेंटेंसेस। आज का वार्तालाप, बेटा कम अगेन, योर वॉइस इज चॉपिंग। आज का वार्तालाप वाक्य। सॉरी बेटा, योर हिंदी सॉरी इज रॉन्ग। साक्षी। योर हिंदी इज रॉन्ग। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? आज का वा, कम अगेन साक्षी। सेंटेंस, साक्षी कम अगेन। आज का वार्तालाप वाक्य। सॉरी। सॉरी। सॉरी साक्षी। वैशाली जी बोलेंगी। टुडे इज इंटरेक्टिव सेंटेंस, आज का बोलचाल का वाक्य। वैशाली जी, आपने इसका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंट किया है, कम अगेन प्लीज। टुडेज करेक्ट। टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस, आज का बोलचाल का वाक्य। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग एक आदत और डेवलप कर लीजिए, जब क्रम चल रहा हो तो अपना माइक बंद करने से पहले किसी का नाम जरूर ले लिया करें। अपना माइक बंद करने से पहले किसी का नाम जरूर लिया करें। हेमा जी। थैंक यू वेरी मच। टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस, आज का बोलचाल का वाक्य। देखो दोस्तों, हेमा जी ने थोड़ा विराम दे के बोला तो स्क्रीन पे गलत लिखा हुआ आ गया, 2 ओके सर। days आ गया, देखा आपने?
अब मिट हाँ गया। सर, 2 days आया। 2 days इंटरेक्टिव सेंटेंस। आज का बोल चाल का वाक्य। अब देखिए दोस्तों, इस ऐप में कितनी अच्छी सुविधा है, इसलिए मैं इस ऐप का यूज करता हूँ। ये डेटा ज्यादा लेता है, लेकिन आपको समझ में तो आता है आप गलत बोल रहे हैं कि सही। राइट सर। तो ये इस ऐप की विशेषता है। ये सुविधा केवल गूगल मीट में उपलब्ध है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली ऑन गूगल मीट। MIG, म्यूट योरसेल्फ बिकॉज योर हाँ माइक इज। शिवांग जी। थैंक यू। I am done. ओके, तो चलिए आज हम आपको यही दोनों चीजें लिखवाते हैं। कल हमने आपसे पेज छुड़वा दिए थे। अगर किसी को याद नहीं है तो हम पूछ लेते हैं। बताओ हमने क्या बताया था, कहाँ और कितना पेज छोड़ने के लिए? पर्व के 20 पेज बाद छोड़ने पेज के 20 लिए छूट पेज जाता है। छोड़ने के लिए बोला था। आपने इडियम्स के छोड़ लिए। दिए? छोड़े बेटा? सर। और एक पेज को मोड़ लिया निशान के लिए। हाँ ओके सर। तो मुड़े हुए पेज के दाहिने तरफ, राइट साइड में, जैसे हम भोजन करते हैं, सीधे हाथ की तरफ यस। वही हेडिंग जो ऊपर आपने अभी पढ़ी। ये किसी का माइक ऑन छूट गया, प्लीज ऑफ कीजिए। वो हेडिंग आपको लिखना है। अभी आप नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लीजिए। हम पहले दिन का सर लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। थैंक यू। कंटिन्यू कर। हाँ सर जी। So what was the first day's interactive sentence? Who will tell me? So the first day's interactive sentence was "Here you are." पहले दिन का वार्तालाप का वाक्य कौन सा था? और पहले दिन का वार्तालाप का वाक्य "Here you are" था, जिसका बेटा यही क्वेश्चन आगे बढ़ाओ। पहले रोशनी दीदी से, रोशनी दीदी साक्षी दीदी से पूछेंगी, साक्षी वैशाली जी से, वैशाली जी हेमा जी से। और प्लीज अपने माइक को म्यूट अनम्यूट करने की आदत पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। बस रोशनी दीदी, what was the first day's interactive sentence? Come again, Sivang. रोशनी दीदी, what was the first day's interactive sentence? The first day's interactive sentence. uh, Here you are. रोशनी दीदी, पहले दिन का बोलचाल का वाक्य क्या था? पहले दिन का बोलचाल का वाक्य था, ये लीजिए। साक्षी जी, what was the first day's interactive sentence? The first day's interactive sentence, here you are. पहले दिन का बोलचाल का वाक्य क्या था? पहले दिन के बोलचाल का वाक्य था, यह लीजिए। सॉरी, पहले दिन के बोलचाल का वाक्य यह लीजिए था। गुड मॉर्निंग साक्षी दीदी। वैशाली दी, what was the first day's interactive sentence? The first day, the first day interactive sentence. Here you are. वैशाली दी, सॉरी वैशाली पहले जी। Come again please वैशाली Come दीदी। again. Come again. Sakshi, come again.
Vaishali Di, what was the first day's interactive sentence? The first day interactive sentence, here you are. दीदी, पहले दिन की बातचीत का क्या वाक्य था? पहले दिन के बोलचाल का वाक्य था, ये लीजिए। हेमा जी, what was the first day interactive sentence? The first day Sorry, interactive sorry, sentence. Vaishali Didi, sorry. What was the first day interactive sentence? Sorry. The first day interactive sentence, here you are. पहले दिन का बोलचाल का क्या वाक्य है? पहले दिन के बोलचाल का वाक्य था, Sorry, यह sorry, लीजिए। sorry, Hema ji. Vaishali ji, come again. पहले दिन के बोलचाल का क्या वाक्य है? पहले दिन के बोलचाल का वाक्य था, यह लीजिए। Who is rest? रोशनी जी। I am done, Hema ji. ओके। Who is rest? बेटा, सर। जब आखिरी हाँ। व्यक्ति बाकी हो तो कोई भी उत्तर दे दिया करो ना, क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा तो प्रैक्टिकल थोड़ी है, क्योंकि ये सवाल तो मेरे ही के द्वारा किया गया है। कोई भी दे दिया करो उत्तर, ठीक है? Good morning, Hema Didi. रोशनी जी, what was the first day interactive sentence? The first day's interactive sentence was, here you are. पहले दिन के बोलचाल का वाक्य क्या था? पहले दिन के बोलचाल का वाक्य here you are, सॉरी, पहले दिन के बोलचाल का वाक्य ये लीजिए। थैंक यू, वेरी नाइस। सेकेंड क्वेश्चन। अब आपको थोड़ी शर्म आएगी हमारे दूसरे प्रश्न को सुन के। शिवांग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हियर यू आर? So the Hindi meaning of here you are is ये लीजिए। हियर यू आर का हिंदी मीनिंग क्या है? सर here you are का हिंदी मीनिंग है ये लीजिए। रोशनी दीदी, what is the Hindi meaning of here you are? शिवांग, voice रोशनी is दीदी, chopping. रोशनी दीदी, what is the Hindi meaning of here you are? The Hindi meaning of here ये लीजिए, here you are ये लीजिए। शिवांग, इट विल डू। ये लोग अभी हेल्पिंग वर्क की हैबिचुअल नहीं है, लेकिन क्योंकि शिवांग अब ये सवाल रोज ही होना है बेटा, तो बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो हेल्पिंग वर्ब लगाएगी। रोशनी दीदी, here you are का हिंदी मीनिंग क्या है? Here you are का हिंदी मीनिंग ये लीजिए है। देखो शिवांग, हिंदी में बकायदा उन्होंने सहायक क्रिया लगाई, इंग्लिश में खा गई, कोई बात नहीं,
इट विल सर डू। फिर से चलिए बोले इंग्लिश का। मत बोलो सर बेटा, रोज पूछेंगे हम। मत बोलो, आगे बढ़ो। साक्षी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हेयर यू आर? The Hindi meaning of here you are meaning ये लीजिए। The Hindi meaning of here you are हिंदी मीनिंग ऑफ, the Hindi meaning of here you are ये लीजिए। सर क्या वॉज लगाना था? Please सर उसका complete the हिंदी हम process. भूल गए। सर हिंदी हम भूल गए। हाँ, हेयर यू आर का हिंदी मीनिंग क्या है? Here you are का हिंदी मीनिंग ये लीजिए है। ओके। वैशाली दी, what is the Hindi meaning of here you are? The Hindi meaning is here you are ये लीजिए। हेबा जी, दीदी here you are का हिंदी मीनिंग क्या है? हेयर यू आर का हिंदी मीनिंग ये लीजिए है। हेमा जी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग हेयर आर यू हेयर यू आर व्हाट इज द हिंदी मीनिंग हेयर यू आर? द हिंदी मीनिंग्स ऑफ हेयर यू आर ये लीजिए। हेमा जी, हेयर यू आर का हिंदी मीनिंग क्या है? हेयर यू आर का हिंदी मीनिंग ये लीजिए है। थैंक यू। हु इज रेस्ट? शिवांग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग्स ऑफ हेयर यू आर? Hema ji, the Hindi meaning of here you are is ये लीजिए। ओके, राइट सर। सर हमने इज नहीं लगाया था। It will do. Please complete the process. ओके। आज नाग शिवांग पंचमी जी, है ना, तो सब लोगों का उपास था, तो हेल्पिंग वर्क सबकी सब खा गए। सबने खाई है, एक लाइन से खाई। हाँ नहीं सर, हमने इज नहीं लगाया था वो। किसी ने नहीं लगाया। हाँ सर। सर मैं फिर से इसका आंसर दूं क्या? लेकिन फिर से उसको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और वो फिर से क्वेश्चन तभी करेगा जब आप उस एक सेंटेंस बोलोगे। बोल दो, आप क्या बोलोगे उससे? व्हाट इज द नहीं हिंदी नहीं, ये मीन? नहीं बोलते हैं। वो क्वेश्चन अच्छा कब करेगा बच्चा? जब आप उससे कुछ बोलोगी। अच्छा, वैशाली जी। नहीं नहीं, आप जवाब कब दोगी हेमा जी? जब जब वो शिवांग क्वेश्चन फिर से करेंगे। सवाल करेगा। हाँ और वैशाली जी, शिवांग कम आपसे, अगेन। हाँ बोलो, कम भारत अगेन, माता मुझसे आप फिर क्वेश्चन पूछिए। की। हेमा जी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हेयर यू आर? द हिंदी मीनिंग्स ऑफ इज हेयर यू आर। सर बोला कि सही नहीं बोला? The Hindi meaning of here you are. Okay, guys. Second question. Shivang, what was the idiom? What was the first day's idiom? Sir, the first day's idiom is work is worship. I don't know. Roshni Didi, what was the first day's idiom?
The first day's idiom work is worship. The first day's idiom is worship. The Hindi also. Worship. अगर हिंदी करना है सर तो हम गलत था फिर से जवाब। राउंड शुरू कर देते हैं। Yes, sir. सर गलत था जवाब। उसका भी गलत है, शिवांग का भी सर जवाब सही गलत। करवाइए ना उसको। करवा रहे हैं ना? सर सही अपना माइक करवाइए। माइक को बंद करो बेटा। ओके थैंक सर। यू। व्हाट, यार हमें समझ में नहीं आता, जब लिखा हुआ आ रहा है तो क्यों गलती। शिवांग, व्हाट was the first day's idiom? Sir, the first day's idiom was work is worship. अब सही जवाब दिया उसने। पहले दिन का मुहावरा कौन सा था? सर, पहले दिन का मुहावरा कर्म ही पूजा था। वर्क इज अब हमने वर्शिप था। कोई चीज 4 दिन पहले दी है, 8 दिन पहले दी है, तो भूतकाल हुआ कि नहीं बच्चों? रोशनी दीदी, what was the first day's idiom? The first day's idiom was work is worship. रोशनी दीदी, पहले दिन का मुहावरा क्या था? पहले दिन का मुहावरा कर्म ही पूजा है। पहले दिन का मुहावरा था कर्म ही पूजा है। अब कॉमन सेंस से सोच के देखो, जब हम अगला सवाल पूछेंगे और उसका हिंदी मीनिंग पूछेंगे तो फिर वही बताओगे क्या? कॉमन सेंस। शिवांग, व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम? Sir, the first day's idiom was work is worship. हमने एक ही सवाल तो किया है, अभी दूसरा कहाँ से आ गया? पहले दिन का मुहावरा कौन सा था? सर, पहले दिन का मुहावरा वर्क इज वर्शिप था। रोशनी चलो दीदी, दूसरा भी कर लेते बेटा, रुक जाओ, दूसरा सवाल भी तुम से कर लेते, फिर तुम 4 सवाल करना। What is the Hindi meaning of work is worship? सर, द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क इज वर्शिप इज कर्म ही पूजा है। अब हम इसमें वॉच थोड़ी लगाएंगे, कल थोड़ी था, आज भी वही हिंदी मीनिंग है जो कल था और कल भी यही रहेगा। वर्क इज वर्शिप का हिंदी अर्थ क्या है? सर, वर्क इज वर्शिप का हिंदी अर्थ कर्म ही पूजा है। रोशनी दीदी, व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम? यू आर म्यूट। दीदी, यू आर म्यूट। What was the idiom? The first day's idiom was work is worship. रोशनी दीदी, पहले दिन का मुहावरा क्या था? पहले दिन का मुहावरा वर्क इज वर्शिप था। रोशनी दीदी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क इज वर्शिप? The Hindi meaning of work is worship. कर्म, that is कर्म ही पूजा है। रोशनी दीदी, वर्क इज वर्शिप का हिंदी मीनिंग क्या है? वर्क इज वर्शिप का हिंदी मीनिंग कर्म ही पूजा है। साक्षी जी, what was the first day's idiom? The first day's idioms was work is worship. The first day's idiom work is worship is Hindi meaning.
Sorry, come The again, please. Please complete the process. पहले दिन का इडियम क्या था? पहले दिन का इडियम था कर्म ही पूजा है। सॉरी साक्षी। पहले दिन का पहले दिन की कहा सॉरी साक्षी, वो गलती मेरे से हुई थी साक्षी, जो आप तुम कर रही हो। पहले दिन का मुहावरा था कर्म ही पूजा है। सॉरी साक्षी। पहले Roshni दिन ji, का you मुहावरा can कर्म ही change the name. वैशाली जी, व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम? The first day was idiom. Sorry, The first day. The first day idiom was work. Work is worship. व्हाट वाज द फर्स्ट व्हाट वाज द फर्स्ट डेट इडियम? नहीं, please complete the पहले दिन process. पहले दिन का मुहावरा क्या था? पहले दिन का मुहावरा कर्म ही पूजा है। Sorry, Roshni ji, you सॉरी can change the वैशाली जी। name. शिवांक, मैं तुमसे कर रही हूँ क्वेश्चन। व्हाट वाज द फर्स्ट डेज I इडियम? am, I am done. शिवांक तो सब गलत जवाब दे रहा है, मैं किससे पूछूं? प्रियावा जी हैं, हेमा जी हैं। The Who first is rest? हेमा जी, व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम? The first day's idiom was work in worship. पहले दिन का इडियम क्या था? पहले दिन का मुहारा कर्म ही पूजा था। सॉरी हेमा जी। पहले दिन का मुहावरा कर्म ही पूजा है। शिवांक, मेरा डेटा खत्म होने वाला है। Okay, please ask me. शिवांग, शिवांक what शिवांक is शिवांक, व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम? Roshni Didi, the first day's idiom was work is worship. पहले दिन का मुहावरा क्या था? रोशनी दीदी, पहले दिन का मुहावरा वर्क इज वर्शिप था। व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम वर्स इज वर्शिप सॉरी, हिंदी मीनिंग? कम अगेन प्लीज। व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम वर्क इज वर्शिप हिंदी मीनिंग? योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। प्लीज द कम हिंदी अगेन। व्हाट वाज द फर्स्ट डेज व्हाट वाज द वर्क इज वर्शिप हिंदी मीनिंग? दोस्तों, एक सुझाव देते हैं हम आपको। आप लाभ नहीं उठा रहे हो। ये पूरी क्लास रिकॉर्ड होती है, YouTube पे है। थोड़ा सा अतिरिक्त समय निकालिए, देखिए उसको। आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया है कि नहीं? क्या है सर? किया है तो वो आता है, उसको देख लिया करो। अपने आप को देखो भी कि कौन कैसे बोलता है, तो वो भी दिखेगा। और जो सही सवाल है वो लिखा हुआ आएगा, उसको पॉज कर दो। पॉज के निशान से नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ो। रिकॉर्डिंग देख लिया करो समय निकाल के।
अपना किचन का काम करते हुए ऐसा रिकॉर्डिंग मोबाइल सामने कहीं रखा और सुनते जा रहे हैं। या वो पहनते हैं ना, क्या पहनती है महिलाएं किचन में? एप्रन। एप्रॉन हाँ, पहनते हैं। उसमें एप्रॉन में एक जेब होता है, उसमें डाल लिया, कान में लगा लिया ईयरफोन और सुनते जा रहे हैं। या सामने कहीं रखने का हो जगह, उसमें रख लिया, देखते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, और जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पॉज कर दिया फट से। तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी जारी रखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन आपकी क्लास खत्म नहीं होगी। आप जितनी देर तक करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। The first question is, what was the first day's idiom? And the second question is, what is the Hindi meaning of work is worship? What is the Hindi meaning of? साक्षी पूछो क्या? हाँ दीदी पूछे। What was the first day idiom? The first day's was idiom. The first day's idiom was work is worship. पहले दिन का मुहावरा क्या था? पहले दिन का मुहावरा वर्क इज वर्शिप था। करते हाँ। What is the Hindi meaning of work is worship? The Hindi meaning of work. The Hindi meaning work is worship of कर्म ही पूजा है। हेमादी पूछे। पूछिए। What was the first day? What was the first day's idiom? The first day's idiom was